हाय गाइस। सो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोक्रास्टिनेशन। ये वीडियो जो है वो 3 पार्ट्स में रहेगी। फर्स्ट, व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन। सेकंड, व्हाई डू वी प्रोक्रास्टिनेट। एंड थर्ड, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन है क्या? प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब इतना है कि जब आप किसी भी काम को टालना शुरू कर देते हो, जब आप कोई भी चीज़ टाइम पर नहीं करते या चीज़ें टाइम पर नहीं करते हो, आप टालते हो, कल परसों, कि कल करेंगे, परसों करेंगे। दैट इज सिंपली कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन। ओके, नाउ like take an example, try to understand this procrastination by an example. Let's say you got an assignment in your college, school, or at your job, right? So there must be a deadline. Till then you have to submit that assignment, but you still wait for the deadline. तब तक वो deadline नहीं आती है, तब तक आप वो assignment नहीं बनाते। That is the sign of procrastination. Okay, now why do we do that? That's really important to find the reason behind this. Why do we procrastinate? Because problem का पता होना is not enough. It's also important to know the reason behind this and then cure the problem. Like if you have cold, then you have to find the solution of that. Else you will not be able to cure your cold, or you will not be able to get rid from that. Okay, now why do we procrastinate? Every person have their some own reason why do they do that, because we all are different, we are not same. But in my case I have found the reason why do I procrastinate. Okay, so I do procrastinate in 2 situations. एक सिचुएशन होती है जब मैं आंसरेबल हूँ अपने वर्क के लिए किसी और को, लाइक माई बॉस इज गिविंग समथिंग टू मी, और माई टीचर इज गिविंग समथिंग टू मी, और माई मदर, देन आई डू प्रोक्रास्टिनेट द थिंग्स। जो टाइम उन्होंने दिया है उस तक मैं प्रोक्रास्टिनेट करती रहती हूँ कि अभी कर दूंगी, एंड मैं लास्ट मोमेंट पर करती हूँ। ओके, एंड सेकेंड सिचुएशन व्हेन आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। लाइक अभी तो किसी ने मुझे काम दिया है तो मैं आंसरेबल हूँ, देयर इज समथिंग विच इज प्रेशराइज मी टू डू द वर्क, एटलीस्ट दैट डेडलाइन. So by the end of the deadline I'll be doing that work. Okay, but when I am not answerable to anyone, I don't do that work. Yes, these are 2 situations when I do that. Now reason being, I take the things very leniently, and this happened with all of us. When there's a deadline, we take it leniently till that deadline. अब क्या चीज़ हमें प्रेशर करती है उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए? फर्स्ट इज दैट फियर कि अगर हमने कंप्लीट नहीं किया असाइनमेंट टाइम पर, देन आवर टीचर विल नॉट गिव अस इंटरनल मार्क्स और दैट मार्क्स फॉर द प्रोजेक्ट. That thing pressurize us to complete the project. When we are in a job, then our superior authority already tell us the drawbacks of not doing the work. Okay, so we got encouraged to do the work. हमें पता है जब तक हमें करना है, but still we do leniently. We take those things leniently. The reason being we are not answerable to us. हम खुद को आंसरेबल नहीं हैं. हम आंसरेबल किसको हैं? फर्स्ट आवर बॉस एंड सेकेंड टू नो वन. सो दीज 2 reasons I found in my case to be a so-called procrastinator. Okay, so even though last to last week I was having fever, cough, and I was not well. So what happened? After 1 week, I started procrastinating the things because I got habitual of that, right? So this habit is a wrong thing, and taking things leniently is a bad thing, which makes us to procrastinate everything. Okay, now अब दूसरी चीज़ क्या है?
हाउ कैन वी स्टॉप दैट प्रोक्रास्टिनेशन? अभी आपने रीजन फाइंड कर लिया, व्हाट्स योर रीजन, एज आई फाइंड माई रीजन. सो अकॉर्डिंग टू मी देयर आर थ्री things through which you can stop that procrastination. First, make a to-do list. When you will make a to-do list, then you will have a short-term goal for your whole day. That you will make a to-do list day before yesterday. You know कि आप नेक्स्ट डे मुझे ये काम करना है इतने बजे तक. यू नो वेरी वेल. तो जब नेक्स्ट डे आप उठोगे तो आपके पास एक प्रॉपर वर्किंग है कि आपको कितने बजे तक क्या काम करना है और हाउ मैनी वर्क्स यू हैव टू डू. एक शॉर्ट टर्म गोल होना इज रियली इम्पॉर्टेंट. लॉन्ग टर्म गोल विल नेवर एनकरेज यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. व्हाट विल एनकरेज यू? योर शॉर्ट टर्म गोल्स टू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप डेली के डेली अपने गोल्स बनाएं, टू डू लिस्ट बनाएं. सो जो आपको है वो प्रोक्रास्टिनेट करने से रोकेगा. That is the one solution which you can go for. Second one is be your own boss. Okay, अभी तक आप किसी और को आंसर कर दिया तो आपने डेडलाइंस बनाई. सॉरी, उन्होंने आपको डेडलाइंस दी. नाउ व्हाट हैपेंड? जब आपको वो डेडलाइंस देते हैं तब भी आप उस डेडलाइन तक कई बार कंप्लीट नहीं कर पाते एंड यू स्टार्ट गिविंग फेक एक्सक्यूजेस टू देम कि दैट वाज द प्रॉब्लम और दिस वाज द प्रॉब्लम. Now when you will be your own boss, जो आपने to do list बनाया, आप at the end of the day you are going to check कि आपने कितना काम किया और कितना नहीं. और जब उस लिस्ट में से आपके पास एक आउटपुट निकल कर आएगा that you have given 10 works to yourself and you have done only 8 works, so what was the reason of not doing those 2 works? तो आप खुद को झूठ मत नहीं बोलोगे. You are not going to lie yourself because you know कि कोई बीमार नहीं था घर में, किसी को कुछ नहीं हुआ था, तो आप ये फेक एक्सक्यूजेस नहीं दे पाओगे. और भी जो एक्सक्यूजेस हम देते हैं और यूजुअली टू दैट अथॉरिटी जिसको हमने ये बनाया हुआ है कि दे आर आवर बॉस, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है प्रोक्रास्टिनेशन की. ओके, व्हेन यू बिकम योर ओन बॉस यू विल नॉट प्रोक्रास्टिनेट. दैट्स व्हाट आई थिंक. फर्स्ट हो गया कि आपको टू डू लिस्ट बनानी है. सेकेंड वन इज आपको खुद का बॉस बनना है, बी योर ओन बॉस. नाउ व्हाट इज द थर्ड थिंग विच यू कैन डू इज मोटिवेट योरसेल्फ. ओके, नाउ हम सब क्या करते हैं जब भी हमें डीमोटिवेशन आता है, वी सीक फॉर मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स. बट द बेस्ट मोटिवेशन यू कैन सीक और यू कैन हैव दैट इज फ्रॉम योरसेल्फ. बिकॉज you know what's your goal in your life, you know what is your short term goal, और आपको पता है आप यहाँ पर क्यों हो और वो काम क्यों कर रहे हो. वो चीज़ किसी और को नहीं पता. that means you can go for that. that means you can motivate yourself कि आप क्यों कर रहे हो. you have your own reason. no one can tell you what is your reason of doing that thing. so आप खुद को मोटिवेट करोगे तो definitely you will be able to. अब how can I motivate myself? You have to find your own motivation with your own lifestyle. कि आपको find करना पड़ेगा आप कैसे मोटिवेट होते हो. How do you motivate yourself to do your work, to be consistent in your path? क्योंकि हम सब जब अपने गोल की जर्नी में होते हैं we got stuck और sometimes हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने पाथ से. क्योंकि जब हम कहीं न्यू डेस्टिनेशन पर जाते हैं ना तब भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. बट दैट डजंट मीन कि हम उस डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचते. वी ट्राई आवर बेस्ट टू रीच दैट डेस्टिनेशन. सो यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ. अगर आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हो देन अगेन आपको ये चीज़ माइंड में लानी है दैट यू हैव टू मोटिवेट. नो वन एल्स विल कम टू मोटिवेट यू. क्योंकि पर्सनलाइज मोटिवेशन अभी आपको कोई नहीं देने वाला है. ठीक है. ओके, सो हाउ डू आई मोटिवेट माई सेल्फ. मेरे को कैसे लगता है कि मैं खुद को मोटिवेट कर सकती हूँ एंड वट डिड आई डू. आई सिंपली डू वन थिंग कि जो मेरी नोटबुक है जिसमें मैंने अपने गोल्स लिखे हैं मैं उसे डेली रात को अपने साथ रखती हूँ. जब मैं सोती हूँ आई पुट इट बिलो माई पिलो सो दैट
जब मैं सुबह उठूंगी आई विल पिक दैट नोटबुक, रात को सोते टाइम आई पिक दैट नोटबुक इन माई हैंड। आई ऑलवेज रिमेंबर दैट गोल। राशिका, तुझे वो गोल अचीव करना है। यू हैव सम गोल्स, और तूने जो गोल्स बनाया है यू हैव टू अचीव। देखो, तुम्हारे शॉर्ट टर्म गोल्स ही ना तुम्हें लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए प्रेशराइज करेंगे। नाउ मैंने बोला ना कि वहाँ पर एक एलिमेंट होता है जो आपको प्रेशराइज कर रहा है। क्या? फियर ऑफ नॉट गेटिंग इंटरनल मार्क्स। तो अब यहाँ पे क्या है? फियर ऑफ नॉट टू लाई योर सेल्फ, दैट विल पुश यू टू नॉट प्रोक्रास्टिनेट एनीथिंग। ओके, व्हेन यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ, तो आप खुद से झूठ बोलना नहीं चाहोगे, और जब आप खुद से झूठ बोलना नहीं चाहोगे, वही चीज़ आपको प्रेशर करेगी, आपको पुश करेगी कि आप वो काम करो, ना कि उसे प्रोक्रास्टिनेट करो। सो यू हैव टू फाइंड योर ओन पुशिंग एलिमेंट जो आपको पुश कर पाए। नो, यू हैव टू डू एंड यू कैन डू। Okay guys, that's what I could share with my personal experience. If you guys like my video, then do like, share, subscribe and comment. Bye bye.